ઉધના પોલીસે વાહન ચેકિંગમાં 2 શખ્સને પકડી પાડી સાયબર ક્રાઇમની ઓનલાઈન ચીટિંગનું દેશવ્યાપી મોટું રેકેટ પકડી પાડ્યું છે। આ રેકેટમાં સુરતના 2 માસ્ટર માઇન્ડ છે, જેના છેડા વિદેશમાં ક્યુબામાં જોડાયેલા છે। બંને સૂત્રધારોએ છેલ્લા 6 મહિનામાં 200 કરોડના 100 બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્ઝેક્શનો કરેલા હોવાની ચોંકાવનારી હકીકત પોલીસને જાણવા મળી। સુરત પોલીસને બગાસુ ખાતા પતાસું મળ્યું હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે। ઉધના પોલીસે વાહન ચેકિંગમાં 2 શખ્સોને પકડી પાડી તેની પાસેથી શંકાસ્પદ બેંક ખાતા સહિતના ડોક્યુમેન્ટ મળી આવ્યા। ટોળકી બેંક ખાતાનું ઓનલાઈન ચીટિંગની રકમના ઉપયોગ કરતા કડાયેલામાં સૂત્રધાર કિરીટ જાદવાણી 20 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન દિલ્હીમાં બેઠેલા સૂત્રધાર વિનીત પ્રસાદને કર્યા હોવાની હકીકત સામે આવી છે। ઉધના પોલીસની એક ટીમ દિલ્હી જઈ તેને ઝડપી પાડ્યો। 100 જેટલા બેંક ખાતાની માહિતી લેપટોપમાંથી મળી। કરોડોના ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા છે। તમામ બેંક ખાતાઓ આરોપી કિરાટે દિલ્હીના વિનીતને આપ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી। બંને ભાગીદારીમાં રેકેટ ચલાવે છે। હજુ દિવ્યેશ ફરાર છે। તેને પકડવા માટે પોલીસ તેના ઘરે ગઈ, જોકે તે હાથમાં આવ્યો નથી। મોબાઈલ પણ બંધ છે। લેપટોપમાંથી મળેલા ડેટાના આધારે 100 કરંટ બેંકના ખાતાઓ છે। તમામ ખાતાઓ સુરતની બેંકના છે। ટોળકી પાસેથી મળેલા 100 બેંકના ખાતામાંથી 35 ખાતામાં સાયબર ક્રાઇમની દેશવ્યાપી ફરિયાદ નોંધાયેલી છે। વધુમાં બંને સૂત્રધારોને ક્યુબા દેશમાં બેઠેલા સૂત્રધારને 2% કમિશન પેટે વોલેટ ટુ વોલેટ USDT આપતા હતા। પછી કિરાટ અને દિવ્યેશ અહીં USDT વોલેટમાં અન્ય કોઈને વેચી રોકડા કરી લેતા। સૂત્રધારોએ છેલ્લા 6 મહિનામાં ઓનલાઈન ચીટિંગમાં 10 લાખ USDT કમાયા છે। કરંટ ખાતેદારને 1 ખાતાના 8 લાખની રકમ આપતા એ શખ્સ પણ લાલચમાં આવી ભાડાની દુકાન બતાવી ધંધો તેમજ GST નંબર લઈ કરંટ ખાતું ખોલાવી સૂત્રધારોને તમામ વિગતો આપી દેતા પછી ખાતાઓને ઓપરેટ કરવાનું કામ ગેંગ જ કરતી। પોલીસના હાથે લાગેલા ખાતામાં બેંક ખાતામાં 3 દિવસમાં 42 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે। અન્ય એક ખાતામાં 26 કરોડ અને 19 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા। ક્યુબામાં કરંટ બેંક ખાતાની વિગતો રેઝર એક્સ એપ્લિકેશનથી મોકલતા ક્યુબા દેશમાં કરંટ બેંક ખાતાની વિગત રેઝર એક્સ એપ્લિકેશનથી મોકલતા, જેમાં યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શનો કરતા કિરાટ દિલ્હીના વિનીત પ્રસાદનો સંપર્ક કર્યો। 3 મહિના સુધી કિરાટ અને દિવ્યેશ દિલ્હી ખાતે વિનીતને કરંટ બેંક ખાતાઓ મોકલતા, પછી બંને ડાયરેક્ટર ક્યુબા દેશમાં બેંક ખાતાની ડિટેલ્સ મોકલતા। હાલ તો ઉધના પોલીસ આ मामले વધુ तपास हाथ धरी है। सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में उधना पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान उसको एक व्यक्ति को उन्होंने रोका था, जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। रौनक करके ये व्यक्ति है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसको जब पूछा गया डीप में, तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे उसके वो जहाँ काम करता है वो मीत करके एक व्यक्ति, मीत खोखर, उसके पास से उसको मिले हैं। तो फिर पुलिस ने मीत के पास पुलिस गई थी। उसके वहाँ थोड़ी तलाश की। बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त किराट जादवानी वो भी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह 2 व्यक्ति पुलिस के पास रहे, जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किराट जादवानी है। इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे। उनके दोनों के पास से हमको 3.5 लाख का कैश अमाउंट, 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 35 जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं वो मिली थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फर्म के नाम थे। बाद में वहाँ से हमको कुछ ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला था। फिर उनको इस बारे में पूछा गया तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया, लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे। वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है, नितिन प्रसाद करके, विनीत प्रसाद करके एक व्यक्ति, उसके वो लोग सेल करते थे। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फर्म के, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने GST नंबर भी उसके लिए थे, और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे। ये करंट अकाउंट वो लोग विनीत प्रसाद को सेल करते थे। टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था। तो विनीत प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था। बाद में ये किरात और मीत दोनों अन्य एक व्यक्ति जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट, उनके कांटेक्ट में आए थे।
ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने ट्रेस किया था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें 100 जितने अकाउंट्स खोले गए हैं। ये 100 अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है, एनरूट हुआ है, वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें 200 करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजैक्ट हुई है। और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2% कमीशन मिलता था। तो उसमें करीबन 4 से 5 करोड़ का कमीशन उनको यूएसडीटी के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इंफॉर्मेशन है। हम सारे ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक ट्रेस कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वेब हो, जैसे मकड़ी का जाला हो, उस तरह का एक दूसरे में अकाउंट्स जुड़े हुए हैं और उसके लिए हमें काफ़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये लोग, एक रिच पे नाम का एक व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर है, तो उसका अभी तक का इन्फॉर्मेशन ये है कि वो क्यूबा का है, लेकिन वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसने ओरिजिनल नंबर यूज़ किए हैं या कोई और है। उस रिच पे को ये लोग अकाउंट सेल फर्दर कर रहे थे, तो उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए हुए हो, ऐसी अभी प्राइमरी जानकारी है, क्योंकि ये जो पूरी घटना है उसमें कई जगह साइबर के केसेस भी हुए हैं और उसके कारण कुछ अकाउंट्स फ्रीज भी किए गए थे। पुलिस ने अभी तक सारे अकाउंट्स को जांच नहीं पाई है, हम सभी को अभी जांच रहे हैं, सभी को हमने फ्रीज करवा दिए हैं। अभी तक हमको जो मुद्दा माल मिला है उसमें हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जो आरोपी है उसके अकाउंट में पैसे वो फ्रीज करवाए हैं। फर्दर और कुछ हमें इंफॉर्मेशन है कि उनके पास कैश भी है, उसकी जांच पड़ताल अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 ન્યૂઝ સુરત। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।